Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all in today's video lecture series on integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir state. This is the chapter taken from the 9th class history designed by CBSE. In this chapter, we will try to understand what were the circumstances which led to the integration of J&K state with India and what was the outcome of that integration. At the same time, we will try to understand the role played by different leadership in this integration and the major issues which have become international issues, especially in today's modern world. Similarly, we will try to understand some background of Jammu and Kashmir state. At the same time, what happened to J&K state between 1947 to 1956. Hope you will enjoy these video lectures on integration of princely states. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ के पहले वीडियो से। जो आपके सामने ये मैप नज़र आ रहा है, इस मैप में आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का मैप, जिसमें 3 कलर्स का मैप बना हुआ है। एक कलर जो इंडिया के अंदर है, यानी एक पार्ट इंडिया के अंदर, दूसरा पार्ट पाकिस्तान के अंदर और तीसरा पार्ट जो छोटा है वो चाइना के अंदर है। तो इस तरह से जो चाइना ने कंट्रोल किया है दैट्स कॉल्ड अक्साई चिन, और जो पाकिस्तान के अंदर है दैट्स कॉल्ड पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो इंडिया के अंदर है उसको कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वट एवर नेम्स आर गिवन, बट it is certain and it is fact that it has been divided by the 3 major powers, that is India, Pakistan and China. Let's try to understand what happened and why this big, or we can say biggest state of the time, has been divided by these powers, and why there is an international issue because of this J&K state. Hope you will enjoy this series. Look at the pictures, it will show you a serene beauty as well as we can say calm everywhere. Looks very beautiful, but it's not the fact. On the one side there's a natural beauty, but on the other side the people are facing lots of problems. Why they are facing problems? That is because of political situation in the region. So this J&K state was not like this since times immemorial. It was a full-fledged state. It was ruled by so many dynasties like Hindu dynasties, Muslims, Dogras, Afghans, Mughals, etc. But due to some political problems, it's witnessing number of issues in present day world. These pictures show us serene beauty of J&K state, may be the reason for political turmoil as well. Anyways, let's move to the main topic, which is supposed to be the part of this lecture. As you know, India was ruled by Britishers for a long period of time, especially for almost 200 years, from 1757, that's Battle of Plassey, and up to the 1947 Act, that's called as Independence Act. So from 1757 to 1947, Britishers ruled India for almost 200 years. During this period, India was ruled through different ways, through different policies, and British Empire, which was called as the biggest empires of the time, which stretched from east to west, and it was believed that sun never sets in British Empire. Anyways, so Britishers established their rule in India in 2 different ways. One that was called as direct rule, and second that was called as indirect rule. What was direct rule? It was simply the conquest and the battles which annexed more and more territories of India to the British Empire. These regions which were directly controlled by the Britishers came to be known as British India or British controlled regions. But on the other hand, Britishers left some certain areas or regions in the hands of local rulers, and these regions came to be known as
indirectly ruled regions, or princely states, sometimes also called as Indian states or sometimes called as indirectly ruled regions. तो यहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1757 से हिंदुस्तान पे रूल किया। रूल करने के दो तरीके थे, एक था डायरेक्ट रूल, दूसरा था इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल में जहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश आर्मी थी, उन रीजन्स को कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया। लेकिन एक और पार्ट था, ऑलमोस्ट 40% ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो हिंदुस्तान में थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, यानी वहाँ पे रूल करने वाले लोकल्स ही थे, लोकल रूलर्स थे। लेकिन उन लोकल रूलर्स पे जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो था ब्रिटिशर्स का। हर एक इंडियन स्टेट में या प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिशर्स का कोई ना कोई ऑफिशियल रहता था। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट फिगर हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की इन इंडियन रूलर्स के कोर्ट्स में, या हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स के कोर्ट्स में, उनको कहते थे रेजिडेंट्स। दैट्स वाई समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिडेंसी राज, यानी वहाँ पे रेजिडेंट्स उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। सो खैर, इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी बड़ी एक वास्ट एम्पायर स्ट्रेच की 100 साल में, यानी 1757 से लेकर 1857। 1857 के बाद ट्रेंड चेंज हो गया। तो उस ट्रेंड में क्या किया गया, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे पावर्स लिए गए। अब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अपने हाथों में पावर लिया। पहले कंपनी रूल कर रही थी, अब ब्रिटिश मोनार्क के नाम से रूल होने लगा। तो चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, तो इस तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर की हेड थी दैट वाज क्वीन और समटाइम्स किंग, एंड दैट वाज कॉल्ड एज मोनार्क। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने फिर डायरेक्ट रूल स्टार्ट किया। ये रूल कंटिन्यू चलता रहा 1947 तक। इस बीच में कई बार रिवोल्ट्स भी हो गई, रिवोल्ट 1857 के बगैर। कई बार नेशनल मूवमेंट्स जो राइज हो गई, पीक तक पहुंची, और कभी लग रहा था कि जल्दी आज़ादी मिलेगी। लेकिन फिर भी इस आज़ादी को मिलने में काफ़ी टाइम लगा, और 15 अगस्त को यही आज़ादी हिंदुस्तान को मिली, जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं थी। इस आज़ादी ने बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की। एक साइड से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड जो कलकत्ता की गलियों में नज़र आ रहा था, या पंजाब की गलियों में नज़र आ रहा था। अमृतसर की जो गलियाँ थी वहाँ पे खून ही खून था। लाहौर की गलियों में खून ही खून था। ये तो ब्लड शेड था। दूसरी साइड से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फेस करनी पड़ी, और वो था एक कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट बाद में बन गया मेजर इशू इंटरनेशनल लेवल पे, और जिसको आज कहा जाता है कश्मीर इशू। एनीवेज, तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने रूल किया, कैसे प्रिंसली स्टेट्स उनके कंट्रोल में आ गई। लेकिन जब 1947 में एक्ट पास किया गया जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस एक्ट, उस इंडिपेंडेंस एक्ट में दो कंट्रीज़ को क्रिएट किया गया। ब्रिटिशर्स ने दो कंट्रीज़ क्रिएट की, नई कंट्रीज़, और उन कंट्रीज़ में एक कंट्री थी इंडिया और दूसरी कंट्री थी पाकिस्तान। पाकिस्तान दैट्स मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, और जो हिंदुस्तान है इंडिया दैट इज़ हिंदू डोमिनेटेड एरिया। तो इस तरह से दो कंट्रीज़ जब क्रिएट की गई, तो अब सवाल था उन स्टेट्स का जिनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया गया, यानी 3 ऑप्शंस उनको दिए गए इस इंडिपेंडेंस एक्ट के अंडर। एक, टू ज्वाइन ईदर इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। हालांकि जो थर्ड ऑप्शन था टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मोस्ट लीडिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द टाइम। तो इस तरह से दो ऑप्शंस उनके पास रहे, इधर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। बहुत सारे स्टेट्स ने इंडिया ज्वाइन किया, बहुत सारे स्टेट्स ने पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो अभी डिसाइड करने में टाइम ले रहे थे। उन स्टेट्स में सबसे मशहूर और सबसे बड़े स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये कुछ बड़े स्टेट्स थे। J&K स्टेट इतना बड़ा था जितना कि आज आप लंदन को देखते हैं, जितना आप आज इंग्लैंड को देखते हैं, पूरे लंदन इज अ सिटी, इंग्लैंड को देखते हैं। तो इतने बड़े J&K स्टेट में
जो उस टाइम रूल कर रहे थे, दीज वर द डोगराज ऑफ जम्मू। तो डोगराज, जो पहला डोगरा था, डोगरा रूलर, इट वाज महाराजा गुलाब सिंह, हु हैड परचेज्ड J&K state out of 75 lakh rupees from the Britishers. Later on, he and his successors ruled over J&K state and were directly or indirectly controlled by the British up to 1947. तो जिस को हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर J&K स्टेट को परचेज किया था गुलाब सिंह ने, और यही सोचकर उन्होंने पूरे सारे रूलर्स ने, जो भी सक्सेसर्स थे, उनने यहाँ पे रूल किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक कॉलोनाइजर था, दीज वर द ब्रिटिश, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मोस्टली J&K स्टेट, यहाँ पे दो कॉलोनाइजर्स थे, यहाँ पे दो रूलिंग पावर्स थे, एक जो लोकल थे यानी डोगराज, और दूसरे वो जो इन पे रूल कर रहे थे, दीज वर द ब्रिटिश। तो क्या टेरेबल कंडीशन रही होगी J&K स्टेट के साथ, ये हम समझ सकते हैं। खैर 1947 में जब ये ऑप्शंस इनको मिले टू ज्वाइन ईदर टू ज्वाइन इंडिया और टू पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो इन तीन स्टेट्स ने, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने थोड़ा सा टाइम लिया। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जिसमें तीन रीजन्स थे, जम्मू द हॉट रीजन, लद्दाख द कोल्ड रीजन, एंड द कश्मीर दैट्स मॉडरेट रीजन। क्लाइमेटिक जोन्स डिफरेंट है तो कल्चर्स भी डिफरेंट है, लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है, और इस तरह से यहाँ पे जो ट्रेडिशंस है वो भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये एक फुल फ्लैज्ड स्टेट था, काफ़ी वास्ट स्टेट था। तो इस स्टेट के बारे में जानने की और कोशिश करेंगे। तो जैसे ही 1947 में ये ऑप्शन इनको मिले, तो जो यहाँ का रूलर था महाराजा हरी सिंह, उस टाइम पे डोगराज का रूलर महाराजा हरी सिंह, उसने टाइम लिया डिसाइड करने में। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अगर उसने टाइम लिया तो किस बिना पर लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैप्स होगी 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के किसी पार्ट पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं रहेगा। अब जब 15 अगस्त को ये लैप्स हो गई, तो महाराजा ने किस एक्ट के अंडर, किस पावर के अंडर, किस एडवाइस के अंडर ये डिलेमा लिया, ये टाइम लिया टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी और भी थी, मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स वर विथ पाकिस्तान, तो इस वजह से ज़्यादा सप्लाईज भी पाकिस्तान से आ रही थी, यानी खाने पीने की चीज़ें या बाकी ज़रूरतें। सेकेंडली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़ दैट ऑफ मुस्लिम्स, सो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, तो दूसरी कंडीशन। अब अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो इट इज़ हैविंग मोर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान दैन विथ इंडिया। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो उस टाइम पे उस इंडिपेंडेंस एक्ट में क्लियर कट डिफाइन की गई थी। खैर, वट एवर वर द कंडीशंस, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ J&K स्टेट विथ इंडिया। तो पार्टीशन तो आया, पार्टीशन ने न सिर्फ ब्लडशेड, न सिर्फ गरीबी, न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, न सिर्फ डिस्ट्रक्शन देखी, बल्कि इसके साथ साथ वो कंडीशंस भी क्रिएट की जिसकी वजह से आज दुनिया के दो, एशिया के दो पावरफुल कंट्रीज़ आपस में दुश्मन बने हैं। हालांकि जो कल तक एक थे, आज वो दो है, और दोनों एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो रीज़न क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो 1947 में, जैसे मैंने पहले ही कहा, ब्रिटिश रूल एंड हुआ, इस तरह से दो कंट्रीज़ बन गई, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक जो ब्रिटिश सुजरेनिटी थी इंडियन स्टेट्स पे, या जो ब्रिटिश इंडिया था, तो वो ख़त्म हो गया। अब उस टाइम पे देखा जाए तो जो भी स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन किया, या जिस स्टेट ने भी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया, उनका डिसीजन तो हो गया। व्हाट अबाउट दोज स्टेट्स हु टुक टाइम टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ देयर स्टेट्स? तो रूलर्स थे, जैसे बात करते हैं जूनागढ़ की या हैदराबाद की या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, तो कहीं पे पॉपुलेशन एक रिलीजन की थी, रूलर दूसरे रिलीजन का, तो कहीं पे केस भी उल्टा ही होता था। जैसे
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो रूलर था वो हिंदू था, जबकि पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। तो ऐसी सिचुएशन में डिसाइड करने में टाइम लगा। तो जो यहाँ का रूलर था महाराजा हरी सिंह, उनको बार बार इन्फ्लुएंस किया गया कि आप जल्दी से डिसीजन लीजिए। बट महाराजा वॉज नॉट इन अ मूड टू ज्वाइन ईदर ऑफ द डोमिनेंस, नीदर पाकिस्तान नॉर इंडिया। He was trying to carve out his own empire for a longer period of time as an independent ruler. But it was not possible according to the circumstances. Let us see why. पहली बात, अगर महाराजा हरी सिंह उस टाइम पे इंडिपेंडेंट रहता और ब्रिटिशर्स उसको अलो करते, तो फिर इस हिसाब से 365 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ बन जाती इंडिया की। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम थी। और उन कंट्रीज़ में, यानी जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, क्योंकि 1947 में मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अगर उनको अलाउ करते तो इतनी कंट्रीज़ बन जाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर वो आपस में लड़ते रहते और ओबवियसली जंग चलता रहता। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने जो इंडिपेंडेंस का ऑप्शन था वो ख़त्म कर दिया। तो खैर, इस तरह से जो मेजर स्टेट्स यहाँ को आपको नज़र आ रही है, तो वो आपको नज़र आएंगे कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का जो यहाँ पे मैप दिया गया है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इसी तरह से बलूचिस्तान था या राजपूताना एरियाज़ थे, हैदराबाद था या मैसूर था, भूटान भी था या नेपाल भी यहाँ पे था। सो दीज वर सम ऑफ द स्टेट्स। यू कैन सी देयर आर सम स्टेट्स विच आर वेरी मच बिग। एनीवेज, तो इस तरह का ऑप्शन ख़त्म किया गया और इनको सिर्फ दो ही चॉइसेस दी गई, ईदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान। सो सम ज्वाइनड इंडिया, some joined Pakistan, but the ruler of Jammu and Kashmir state and Hyderabad took time to decide their future course of what you can say politics. So in this condition, there was a need of essential supplies. As I have already told you that most of the supplies came from Pakistan rather than from India. It was because of the land routes which were directly connected with the Pakistan region. So in this situation, there was a need to have some kind of agreement to continue these supplies. But due to certain problems which were created by some people, these supplies were disturbed. Let us see how and when. So was the case with Lord Mountbatten. I already have discussed about Independence Act and the last viceroy, that was Lord Mountbatten. Even he visited J&K state several times, but mostly in 1947. The objective was to influence Maharaja Hari Singh to take the decision as soon as possible. For the same reason, he he even advised ruler not to take much time in the decision. Better is to join either India or Pakistan. खैर, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस बात पे यहाँ डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना तो सच है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि महाराजा हरी सिंह को किसी तरह से कन्विंस किया जाए कि 1947 में ही, यानी 15 अगस्त से पहले ही डिसीजन लिया जाए। लेकिन महाराजा, मैंने कहा पहले ही कहा, वो इस मूड में नहीं था। तो 15 अगस्त को महाराजा ने कोई एक डिसीजन लिया जो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? बेसिकली ये वो एग्रीमेंट था जिसमें उसने इंडिया को भी ऑफ़र दी और पाकिस्तान को भी ऑफ़र दी कि जो प्री ब्रिटिश, यानी या हम कहेंगे ब्रिटिश टाइम्स पे जो रिलेशंस थी इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, जो सप्लाईज आती थी दोनों साइड से, या जिस तरह की भी टर्म्स थी उससे पहले ब्रिटिश पीरियड में, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, because J&K state is not producing much in agricultural sector, mostly the food grains which were imported from these two areas, especially from India and Pakistan right now. So before partition, most of the supplies were imported from Pakistan area. So in this connection, Maharaja Hari Singh tried to establish an agreement or tried to sign an agreement with both India and Pakistan. Let's try to understand why. सो महाराजा हरी सिंह ने टाइम लिया
और इस बीच में 15 अगस्त को एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया गया between Jammu and Kashmir state and Pakistan on the other side from Pakistan, India एंड J&K स्टेट, या यूं कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी टेम्पररी एग्रीमेंट दोनों को ऑफर किया, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो पहले भी मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स आर विथ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द लैंड रूट्स वर विथ पाकिस्तान, पोस्टल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, दीज वर लिंक्ड विद द लाहौर। सिमिलरली जो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो भी लिंक्ड थे पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से जो यहाँ कंडीशन लग रही थी वो काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही थी, क्योंकि दोनों के दोनों, मुस्लिम लीग एक साइड से, इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरी साइड से, दोनों चाहते थे कि महाराजा जल्दी से कोई डिसीजन ले और या तो इंडिया ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान। तो इन दैट सिचुएशन महाराजा खुद किसी और ड्रीम में था, टू carve out his own empire, to have his independent kingdom। तो इस सिचुएशन में वो डिलेमा में रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं इंडिया ज्वाइन करूं या पाकिस्तान ज्वाइन करूं। सो ही took time from 1947 अगस्त 1947 टू अक्टूबर 1947। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रिटिश रूल लैप्स हो गया, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, अब कोई रूलर नहीं है। यानी कहा जाए तो जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, या इंडिया की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे, इन पे किसी का रूल नहीं है। अब अगर रूल नहीं है किसी का, तो बताइए J&K स्टेट उस टाइम पे क्या था? वॉज नॉट इट इंडिपेंडेंट स्टेट? यस इट वॉज। सो इन दिस वे वी कैन से इट एंजॉयड इंडिपेंडेंट पोजिशन फॉर सम टाइम, क्योंकि ना तो ब्रिटिश रूल है ना तो किसी और का रूल है। सो फ्रॉम 15th of August 1947 to October 1947, महाराजा हरी सिंह was an independent ruler। खैर ये तो एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड रहा जो J&K स्टेट ने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसी डिलेमा में था कि मैं क्या करूं, मुझे किसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ आपको मैप दिखाया जाएगा। मैप पे देख सकते हैं आप, एक साइड से पाकिस्तान, दूसरी साइड से इंडिया और ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा मैच कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स आर विथ व्हाट वी कैन से पाकिस्तान। लाहौर यूनिवर्सिटी, जिससे सारे इंस्टीट्यूशंस जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में उस टाइम पे चल रहे थे वो लिंक्ड थे, बल्कि रजिस्टर्ड थे। तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई तो आप समझ सकते हैं सारा एजुकेशन सिस्टम बेकार। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की मैंने बात की, 12 अगस्त को ये ऑफ़र किया गया, 15 अगस्त को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, बट इंडिया ने इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। बार बार उनकी तरफ से एक ही ऑफ़र थी, टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ J&K स्टेट। सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे। क्लैरिफिकेशन क्या थी यहाँ पे? सिंपली टू ज्वाइन इंडिया। यानी पाकिस्तान एक्सेप्टेड दिस एग्रीमेंट, ऑन द अदर साइड इंडिया डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस एग्रीमेंट एंड was demanding for some sort of clarification. What clarification this was, one can easily understand. So यहाँ तक हमने देखा एक एग्रीमेंट हो गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये टेलीफोन्स के जरिए था, both with Pakistan and with India, but India later on rejected it. It did not accept this agreement, though the agreement continued with the Pakistan. तो यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की कि ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद क्या सिचुएशन हुई 1947 में, क्या ऑप्शंस मिले इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक, लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी कोशिशें की और इसके साथ महाराजा हरी सिंह क्यों डिलेमा में रहा, और क्या स्टेटस था उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।